Yeah, good afternoon, everyone. Thank you, everyone, on a Sunday afternoon to join. Now, obviously, which day is Sunday and which day is Monday becomes a bit difficult to figure out currently. So, today's topic is about obviously about the insurance industry and on the real estate industry, real estate agents, about the insurance agents, and all those ones who are into the financial distribution segment. Now, previously in my last three videos, in my last three meetings, which I have done with you, all of you, I have told very clearly regarding that what kind of strategies needs to be adopted and where one needs to work currently under the current circumstances so that they can grow their business. So now, obviously, one thing is very much clear that the lockdown has been extended and we don't know that post 3rd of May, it might be extended further. For how long? Nobody knows, because the entire thing is dependent upon the way the disease is being controlled, how it is being controlled, how the things are being taken into account. All those things comes into the picture. So based on that one, the lockdown time frame will be decided, and accordingly, as the lockdown is being extended, the impact on the economy, on the business, on any sector is going to happen accordingly in that way. So now the thing is this, that this is one of the best time when we can plan up and decide what we need to do post lockdown is over, post COVID is over, how we need to move aggressively into the market and drive our business accordingly. So now obviously within the financial products and all those things, hardly there will be an appetite for investment right at the moment, whether it's a corporate or whether it's an individual, because everyone will be in a mode of managing their fixed cost, cutting down on cost. So obviously there will be an impact on the job and all those things. So being a financial distributor, being an independent financial distributor, or being an insurance advisor, what kind of strategies I should be adopting for my business as well as an approach towards my client. And when I'm talking about not only about, I'm not restricting today myself only to the insurance agents, but I am opening out to a larger audience perspective, which is the real estate agents. So now obviously I'm dividing the session of today into two parts. One part is talking about the insurance, where I need to focus, where I need to strategize, which products I need to get into. So I'm getting into that part first of all. And the second part of the session will be divided for the real estate outlook, the industry outlook, and the agents, the real estate agents, how they are going to survive, how they are going to run their business, whether they need to plan for exit of the business or whether they need to plan for the business. Now, in the first part, when I'm talking about the general insurance part, obviously the only thing which comes into my mind is general insurance. The reason being, general insurance is not a push product. It's a product which has got its own demand. Now, under this lockdown situation, I am also coming from a financial distribution company where I am heading the business of a company, and we are aggressively have been promoting to our B2B network, because we completely deal with B2B. So we have been aggressively pitching to the B2B network regarding that you need to focus on the general insurance, and within the general insurance part, you need to focus on motor, health, term insurance at the current moment. Current moment means till the time the lockdown is there or post lockdown, because the reason behind is this: health has become a top priority now. The biggest advantage which the COVID-19 has given, मतलब COVID-19 का सबसे बड़ा advantage ये हो गया है that it has built up an awareness of health. It has built up an awareness of cleaning our, washing our hands, being to be more clean. So healthy habits हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा grow हो गया. Obviously, the second benefit has been that we are all into our home. So being in home, we are all enjoying our home food. तो obviously बाहर का जो junk food का जो segment था वो बंद हो गया. तो हमारी एक healthy lifestyle की एक segment हमारी grow हो गई. So now, as because we have all become now health conscious, health insurance की industry की growth अभी ज़्यादा होगी. Top up plans will be sold more. So you need to pitch, because this is what we are pitching to our B2B network. आप top up plans के ऊपर focus कीजिए. आपके अगर health insurance नहीं है या है, renewal आने वाली है,
you increase your health insurance coverage. So that thing is coming up. Term life is a segment which has now become more important for corporates, for people working class like us, because life में कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता. So obviously term life have become an important product right now. Motor insurance तो पहले से ही था. It is one of the most easiest way where you can, जो लोग coming from a diverse industry, not predominantly from the insurance industry, उन लोगों के पास जो क्लाइंट का डेटाबेस है उसमें आप मोटर इंश्योरेंस के थ्रू you can get the penetration level within your client, and from there you can get into the segments accordingly. So that is why motor insurance becomes more important. Now health, term and motor, these three can be pitched right now aggressively, sitting at the home, to the help of your own of your partners, या किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, किसी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, उसके थ्रू आप इन सारे प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हो, getting a hand on with them. Now the other chapter which comes up into the picture is this, that post COVID टर्म एंड हेल्थ की एक सर्टेन लिमिट होती है होने की, उसमें एक सैचुरेशन लेवल आने की चांसेस ज्यादा है, बिकॉज सबको इसी प्रोडक्ट के ऊपर पिच करना शुरू करेगा. नाउ द सेकंड थिंग व्हिच कम्स अप इनटू द पिक्चर इज दिस, दैट आपको नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना. नॉन टैरिफ का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, शॉप्स. किस टाइप के शॉप्स? एनी शॉप. इट कैन बी अ ग्रोसरी शॉप, इट कैन बी एन शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल के अंदर में जो शॉप है वो, it can be a pharmacist, it can be anyone who can get into the segment of insurance. Next है doctors, liability insurance. Directors, कंपनी के directors जो हैं उनको liability insurance की दरकार होती है. Now obviously एक चीज है, नॉन टैरिफ और टैरिफ में एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा. नॉन टैरिफ ऑनलाइन नहीं होता है. इट इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. इट इज ए वन जिसमें आपकी अंडरराइटर टीम उसकी कोटेशंस बनाता है, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजंस होते हैं. बाकी सारी चीजें नहीं तो कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं. तो नॉन टैरिफ प्रोडक्ट में आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलेगी. जो सुविधा आपको मिलेगी वो है टैरिफ वाले प्रोडक्ट्स में, वो आपकी ऑनलाइन बिक जाएगी आज के डेट में भी. सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से आए हैं एंड नॉट अवेयर मच ऑफ द इंश्योरेंस पार्ट, दे आर एक्चुअली लूजिंग आउट अ बिगर अपॉर्चुनिटी ऑफ पिचिंग देयर क्लाइंट्स अबाउट द हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस. बिकॉज कोविड-19 ने काफी सारा चीजें चेंज कर दिया है, काफी सारी चीजें, बिजनेस स्ट्रेटेजी से लेके काफी सारी चीजें. आज जैसे जूम में इतने लोगों से साथ मीटिंग हो रही है, अब बीएनपी कैफे की जो मीटिंग्स होते हैं या मेरे कंपनी के भी जो मीटिंग्स होते थे, द मेजॉरिटी ऑफ द मीटिंग्स विल हैपन ऑन जूम नाउ, इवन आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन इज ओपन, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इसी तरीके से एक्सप्लोर होगा. सब लोग आ नहीं सकेंगे एक जगह में, बट 40 लोग एज ऑन डेट कैन जॉइन अप ओवर हियर. So this type of things will come up. Now coming back to the product line, you need to understand the product line very well. Now within the product line, हर इंश्योरेंस कंपनी का, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट यूनिक है. वेदर वो टर्म में होगा, सॉरी हेल्थ में होगा, या शॉप इंश्योरेंस में होगा, डायरेक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस में होगा, इट हैज टू बी यूनिक. आपको उस यूनिक प्रोडक्ट को पिकअप करना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू पिक इट अप अकॉर्डिंगली. Now, बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा तो मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है अबाउट द जनरल इंश्योरेंस पार्ट में, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. So, काफी सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा, प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हैंड होल्डिंग कैसे होगा. बिकॉज ये चीजें मैं इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज मैं लास्ट 1.5 साल से माई कंपनी being a head of the business, I have been driving this GIA products within my non-GI B2B network. Yes. So I know where the constraint is. आपको hurdles कहाँ पे आएंगे. So now obviously in this segment, we are pitching the product into the B2B network.
तो वहां पे हैंड होल्डिंग में नॉलेज चाहिए, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, एक ट्रेनिंग में नहीं होगा, रिगरस ट्रेनिंग चाहिए। जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव को आपके साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। आपके कॉल्स पे इनिशियली आपको ट्रेन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्ट की पिचिंग होती है उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में वो आपको हेल्प कैसे कर सकता है, जेपेक इमेजेस कैसे बना के देगा को ब्रांडेड बनाने के लिए, या व्हाइट लेबल करके कैसे देगा। अक्सर होता क्या है, मैंने देखा है, हम लोग जब किसी के साथ जुड़ते हैं ना, किसी ब्रोकिंग कंपनी के साथ, हम लोग पहला सवाल पूछते हैं आप ब्रोकरेज क्या दोगे। अरे भाई ब्रोकरेज बाद में आती है, पहले तेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा वो देख ले। ब्रोकरेज हर जगह में 19-20 रहता है ना। ऑब्वियसली जहां पे मुझे वैल्यू कंपोनेंट ज्यादा मिल रहा है, मैं वहां पे ब्रोकरेज में निगोशिएट करने के लिए राजी हूं, प्रोवाइडेड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ वैल्यू इनपुट फ्रॉम हिम। अब आप बोलोगे देयर आर मेनी पीपल इन द स्ट्रीट हु कम्स अप इनटू दिस सेगमेंट। बहुत सारे लोग तो वैल्यू देने के लिए है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए। ठीक है, प्राइस ले लीजिए, बट उसके बाद दूसरा सवाल आता है, जब क्लेम्स आएगा उसका सेटलमेंट कौन करेगा। आई हैव सीन, मेरे ही खुद के ब्रोकर्स हैव डन इट इन अ B2B नेटवर्क। 9 साल का ओरिएंटल का इंश्योरेंस था, उसमें नो क्लेम था। भाई साहब ने अपने कोड में ट्रांसफर करवाया, उनका खुद का लाइसेंस लिया हुआ था एक कंपनी के थ्रू, ओटीपी करवाया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवा दिया, नो प्रिवेलिंग डिजीज। विद इन 2 months देयर वाज अ केस व्हिच हैज कम अप। डॉक्टर ने लिख के दिया ही वाज सफरिंग अबाउट दिस डिजीज फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। द क्लेम गॉट रिजेक्टेड। This is what happens when you try to do a deal of your own. Try to understand, आप अगर बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हो ना, तो कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दूसरे के ऊपर छोड़ देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग एट योर ओन शॉप। प्रॉब्लम क्या होता है, अरे मैं तो अपना ब्रांड नेम बनाना चाहता हूं, मैं अपना इमेज खड़ा करना चाहता हूं, क्लाइंट मुझे जानेंगे। अरे क्लाइंट आप ही को जानेंगे, ब्रांड आप कहां बनाना चाहोगे। 3 कंपनी के साथ तो मैक्सिमम जुड़ पाओगे, उन 3 कंपनी में अगर आपके 500 क्लाइंट के सारे पॉलिसीज आ गए तो बेटर, नहीं आए, जो नहीं होते हैं एक्चुअल इन रियल टाइम, 50% से 60% पॉलिसीज आपकी दूसरे कंपनी में चले जाती है, फायदा क्या हुआ। बाकी का जो 60% बिजनेस लॉस हुआ उसका फायदा क्या हुआ, आपके 40% में क्या मतलब बना। So now a question will come, are you in real promoting to join up with a platform? Yes, I am telling you to join up with a platform. Because अगर आपको बिजनेस डबल करनी है, भागाभागी करनी है, आप फिक्स कॉस्ट बढ़ा नहीं सकते। अभी आपकी जो मेन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस अर्निंग्स था, वो सारे स्ट्रीम्स, मेन स्ट्रीम्स सारे आज के डेट में आर इनटू अ डिफरेंट मोड करेंटली। सो आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, यू हैव टू। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइनिंग व्हिच यू कैन डू। One, you join up with a broking platform, जिसके पास टेक्नोलॉजी सपोर्ट से लेके डिजिटल मार्केटिंग से, नॉलेज लेवल से, ट्रेनिंग से, क्लाइंट मीटिंग से, काफी सारे चीजों में आपको हैंड होल्डिंग करके दे सकता है। जो लोग हेल्थ एंड टर्म पॉलिसीज एंड मोटर इंश्योरेंस बेचते हैं, आई कैन गारंटी देम दे आर नॉट एक्सपर्ट इन नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स। एक गोडाउन की इंश्योरेंस में किस तो क्या 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 चीजें कवरेज होगा वो नहीं पता। एक फैक्ट्री की इंश्योरेंस में, एक कंस्ट्रक्शन साइट की इंश्योरेंस में 5 साल की, एक कंस्ट्रक्शन साइट की 5 साल की इंश्योरेंस एक बार में होती है। आई कैन गारंटी मेनी लोगों को नहीं पता, बिकॉज इट्स द लैक ऑफ नॉलेज। इट इज नॉट योर मिस्टेक, इट इज द टाइम वेयर वी नीड टू चेंज द परसेप्शन नाउ। सो नाउ द थिंग इज दिस, स्ट्रेटेजी के अंदर में एक तो हो गया मुझे किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। नाउ अ क्वेश्चन विल कम, आई विल बी शेयरिंग माय रेवेन्यू विद समवन एल्स। अरे भाई सीधी सी बात है, इवन इफ यू डोंट शेयर योर रेवेन्यू विद एनीवन, वो आपसे पूरा पैसा नहीं लेके जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट में 25% ब्रोकरेज मिल रहा है, ही विल पे यू 22%, बाकी 3% वो रहेगा ही, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज गिविंग यू लॉट ऑफ सपोर्ट इन दैट पार्ट। नाउ अ क्वेश्चन विल कम अप दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी प्लेटफॉर्म। फाइन, यू डोंट गेट इनटू एनी प्लेटफॉर्म, देन यू एक्वायर द नॉलेज ऑफ योर ओन एंड स्टार्ट पिचिंग द प्रोडक्ट्स। अभी आज के लॉकडाउन में कितने क्लाइंट्स को हम लोगों ने पिच किया रिगार्डिंग हेल्थ एंड टर्म? वी हैवंट डन। हम लोग ये सोच के बैठ गए, अरे इन्वेस्टमेंट क्या मांगने जाऊं उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, सैलरी कट, जॉब कट हो रहे होंगे, प्रॉब्लम है।
अरे बॉस, ही इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट हिज हेल्थ, ही इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली। वो शायद रात को सो नहीं पा रहा होगा ये सोच के कि अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। जिसके घर पे, जिसके मोहल्ले पे लोग मरे हैं, उस बंदे की सोच सोचो आज के रात में वो सोते वक्त क्या सोच रहा होगा, वो कितना डरा हुआ होगा। डिड यू गो बैक एंड आस्क हिम एंड स्टैंड बाय द साइड ऑफ हिम? डिड यू टेल हिम दैट यू नीड दिस प्रोटेक्शन टू बी डन? वो झक मार के कर लेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। जिसने टर्म लाइफ नहीं लिया था वो भी 50 लाख का पॉलिसी आज के डेट में ले लेगा। नाउ a question will come, should I be exploiting this opportunity at this point of time? ये अनएथिकल है। क्लाइंट बिना इंश्योरेंस का मर जाएगा, उसका फैमिली रास्ते पे आ जाएगा, वो एथिकल है। ब्रिलियंट। So these are just bottlenecks of your mind which you are preserving currently in your minds right now. So now the next thing which comes up, अब जीआई की ट्रेनिंग हो गई, मैं किसी के साथ जुड़ गया, बट क्लाइंट के पास जाके पिच कैसे करूं? क्लाइंट का डेटाबेस लेके किसी ने बैठा है? मैंने पहले मीटिंग में मैंने बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की पहले मीटिंग में मैंने बोला था, Zoom इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था that you need to sit with your data and do an analysis. If you have done your analysis, then you will get the solution where you are lying today. आप जो रात को सोच रहे हो ना, मेरी बिजनेस कैसे चलेगी, क्लाइंट कहां से आएंगे, क्लाइंट तो सारे उड़ गए, 2015 के लेवल पे मैं आ गया, 2008 के लेवल पे आ गया मेरा बिजनेस, कुछ नहीं आया। आप उन्हीं भी क्लाइंट्स को लेके सोच रहे हो जिनके मुट्ठी भर बिजनेस आपके हाथ में है, उन क्लाइंट्स को नहीं जिनको आपने बनाया बट आप किसी तरीके से उनके साथ जुड़ नहीं पाए, उस डेटाबेस को तो देख ही नहीं रहे हो। पॉइंट बहुत सिंपल है, आर यू चैलेंजिंग द मार्केट थ्रू योर क्लाइंट डेटाबेस? आर यू चैलेंजिंग योर ओपोनेंट्स, जो लोग आज तक उनको पॉलिसी बेच रहे थे? नो, यू आर नॉट डूइंग इट। नाउ सो प्रोडक्ट वाइज आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हर डोर को नॉक करना पड़ेगा टू प्लेस दैट प्रोडक्ट इनटू द सिस्टम। स्ट्रैटेजी टू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, स्ट्रैटेजी के लिए जुड़ना पड़ेगा, बिना जुड़े अकेले नहीं होने वाला है। जो लोगों को लग रहा है मेरा बिजनेस छोटा है, बड़ा नहीं है, मेरी तो लिमिटेड क्लाइंट्स है, आपकी जो डोमेन एक्सपर्टाइज नॉलेज है उस डोमेन एक्सपर्टाइज को लेके चेक आउट विद इन योर एरिया विथ हुम यू कैन पैच अप। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल करना पड़ेगा ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही बंदे को मैं दे सकता हूं जिसका नाम मुझे अभी याद आ रहा है, आर्सेलरमित्तल। वो दूसरे कंपनीज का, स्टील कंपनीज को बाई कर लेता है और अपनी कैपेसिटी साइज बढ़ा लेता है। आप बाई नहीं करने वाले हो, आप टाई अप करने वाले हो। Now I will come to the second part, which is the real estate sector. There are many people, obviously a major part of the economy is linked up with the construction, with the real estate, ancillary industries काफी है। रियल एस्टेट के इंडस्ट्री की जो आउटलुक है, घर कोड़ियों के भाव मिलेंगे। यस, ब्रोकर लोगों की जिंदगी खत्म है। डेवलपर सीधा बोलेगा क्लाइंट को टेबल पे लेकर, क्लाइंट लेके आ, डायरेक्ट सेल्स कर। हर डेवलपर आज के डेट में डायरेक्ट सेल्स की टीम डबल कर देगा। ब्रोकर से जितना ना सेल हो पाएगा वो डायरेक्ट सेल के टीम से सेल्स ज्यादा कर देगा, बिकॉज उसमें उसकी कमीशन बच जाएगी। बिकॉज वो कमीशन का जो पैसा आता था वो आता था विद द प्राइस जो इन्फ्लेटेड रहता था। मतलब मेरी ओरिजिनल फ्लैट की कॉस्ट शायद मैं 50 लाख में बेचने से हैप्पी हूं, बट मुझे आपको कमीशन देना है, मार्केटिंग करना है, तो वो फ्लैट का प्राइस हो जाता 80 लाख। निगोशिएट करके मैं 70-80 लाख में फ्लैट है, अब 80 लाख के अंदर में मैं आपको 2% दूंगा, कितना हो गया? नाउ व्हाट विल हैपन, एजेंट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड। कंपनी बोलेगा मैं खुद बेचूंगा, मैं 70 लाख में बेचूंगा, एजेंट का कमीशन में फॉरगो करता हूं, पार्किंग चार्जेस फॉरगो कर देता हूं, 3 साल का मेंटेनेंस फॉरगो हो जाता है, मॉड्यूलर किचन फ्री में देता हूं। आप बोलोगे ये तो अभी भी चल रही थी ना, और ज्यादा चलेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे को डेवलपर का अपना माल खाली करना है किसी भी हालत पे,
कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एडिशनल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं है, वो एक्स्ट्रा एनपीआर खड़ा नहीं कर पाएगा। बैंक ने जो मोनिटोरियम दिया है, वो बैंक का मोनिटोरियम वर्किंग कैपिटल के ऊपर नहीं है, टर्म लोन के ऊपर है। और ये सारे कंस्ट्रक्शन वालों की जो चलती है वो वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन नहीं है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। सेकंड, जो लिस्टेड कंपनीज जो बैठे हुए हैं, उनकी जो डेट पेपर्स है, जो बॉन्ड मार्केट में देख रखे, वो बॉन्ड जो एक्सपायर होने वाले हैं, वो रीएलोक, जो फिर से अगर वो लोग इशू करने जाए ना, मार्केट में लेने वाला कोई नहीं है। सो ही विल बी कंपेल्ड टू वर्क डायरेक्टली। ऑफिस स्पेस की डिमांड अभी डाउन रहेगी। को-वर्क शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। उल्टा मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर जितने भी सारे शॉपिंग मॉल्स है ना, यहाँ पे अगर स्टारबक्स के माफिक जगह खोल के दे दे, आप लोग बैठ के काम करो एंड यूज इट लाइक एनीथिंग। दिस कॉन्सेप्ट विल ग्रो अप लाइक एनीथिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का फ्लैट, 50 लाख का फ्लैट, ब्रोकर नहीं चाहिए। पहली बात तो खरीदार है नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं अभी। दूसरी बात, जो भी खरीदने वाला है वो बोलेगा ब्रोकर को हटाओ, मैं डेवलपर के साथ ज्यादा सामने बात करता हूँ, चेकबुक लेके निगोशिएशन ज्यादा होगा, उसको ज्यादा सस्ते में मिलेगा फ्लैट। नाउ द सेकंड थॉट विच विल कम अप इन योर माइंड, फिर बिजनेस बंद कर दूं, क्या करूं? मेरा आंसर बहुत सिंपल है, नो, बिजनेस नहीं बंद करना। जो लोग 10 साल 15 साल से रियल एस्टेट ब्रोकिंग में हैं, हजारों फ्लैट बेच चुके हैं, उनके जो हजारों फ्लैट जिनको बेचे जो क्लाइंट्स है, वो डेटाबेस तो आपने बना लिया। क्लाइंट का जो डेटा है, आज के डेट में डेटा इज द बिग ऑयल। 10 साल की जो मेहनत करके आपने जो डेटा बनाया, उस डेटा के ऊपर आज आपको काम शुरू करना है। क्या काम शुरू करना है? क्रॉस सेल्स करना है, जनरल इंश्योरेंस पिच करना है, इन्वेस्टमेंट पिच करना है। अभी आप बोलोगे मैं तो रियल एस्टेट बेचने वाला बंदा हूं, फ्लैट दिखा के बेचता हूं, इन्वेस्टमेंट कहां से बेचूंगा, मैं तो उतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, इंश्योरेंस क्या बेचूंगा? दिस इज द प्लेस जहां पे आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आज के वीडियो में भी बोल रहा हूं, कोलैबोरेशन के टाइम में मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बोला था, जब जहां पे कोलैबोरेशन करना है, उस कोलैबोरेशन जिसके साथ करना है, वो चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं, क्या चीज एक्सप्लोर कर सकता हूं, एक्सप्लॉइट कर सकता हूं, नया चीजें क्या कर सकते हैं। तो वो रियल एस्टेट का जो ब्रोकर है, जिसके पास 1000 क्लाइंट के डेटाबेस है, उसके साथ एक नया कंपनी खोल के बिजनेस शुरू करो। उन क्लाइंट्स को पिच करो, मोटर इंश्योरेंस, गाड़ी तो होगी, टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, शॉप्स होगा। अब वही चीजों में हम लोग वापस आने वाले हैं, उसी डेटाबेस के ऊपर। आज घर नहीं बिक रहा है, ऑफिस नहीं बिक रहा है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी जैसे ठीक होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स भी पिकअप होगा। तो उतना दिन तक क्या करना है, बिजनेस बंद कर देना है? नो, आपने ऑलरेडी डेटा बना लिया है। अगर आप 5 साल में भी 200 फ्लैट भी बेचे हैं, तो 200 क्लाइंट तो बनाए हैं। अरे उन क्लाइंट से आप जाके प्रोडक्ट पिच करोगे ना, 200 में से 50 क्लाइंट से आपकी बिजनेस की कन्वर्शन हो जाएगी। अब जब कोलैबोरेशन कर लोगे, तो धंधे की जब समझ आ जाएगी, तो आप और भी काफी सारी चीजें उसके ऊपर कर सकते हो। So that is the place where you exploit the resources. रियल एस्टेट मार्केट अभी डाउन रहेगा, उसमें कोई उम्मीद नहीं है। उसीलिए मैंने बोला कोड़ियों के भाव बिकेंगे, कोड़ियों के भाव। जो फ्लैट 40 लाख में था, वो बोलेगा 30 लाख में बेच। रीसेल फ्लैट जो बिकते थे, वो दिन खत्म हो गए, रीसेल में बिकेंगे। अगर आप आज के डेट में 26 लाख किसी फ्लैट का मांगते थे, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। 20 लाख के ऊपर मिलेगा ही नहीं। वो बोलेगा नया फ्लैट 30 लाख में मिल रहा है, मैं तेरा रीसेल वाला फ्लैट, जूना फ्लैट क्यों तेरा 26 लाख में लूं? इंटरेस्ट रेट कम है, और ये काम अभी 2 साल तक चलेगा।
तो फिर आप क्या करोगे? अब रियल एस्टेट के अंदर में भी एक सेगमेंट है, कुछ लोग रेंट के ऊपर चलते हैं, टेनेंट्स, वो सेगमेंट भी डाउन रहेगा, इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। एक बिकॉज ऑब्वियसली पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन मुंबई, नाउ समबडी वांट्स टू मूव फ्रॉम दिल्ली एंड वांट्स टू कम टू मुंबई, पहले तो दिल्ली से निकल के मुंबई आएगा, वो अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। उसके बाद तो मुंबई आने के बाद तो फिर आपके पास फोन करके बोलेगा जब मुझे भाड़े के मकान चाहिए, वही अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है तो भाड़ा कहां से आएगा? सो दीज थिंग्स विल हैपन। जो लोग सोच रहे थे शादी करके अलग रहेंगे, भूल जाओ, अभी चिपक के रहेंगे माँ बाप के साथ, अलग हो ही नहीं पाएंगे, खर्चा ही बेयर नहीं कर पाएगा। सो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट्स विल श्रिंक, ऑफिस स्पेस शेयरिंग विल श्रिंक। इफ वर्क फ्रॉम होम में एक सबसे बड़ी चीज हमने जो कर दिया है, हर किसी ने अपने घर पे एक कोना ढूंढ लिया है जहां पे वो ऑफिस चला सकता है। अब वो सोचेगा इसको मैं परमानेंट कैसे करूं। देयर इज अ रेडिकल थॉट प्रोसेस चेंज लोगों के मन में अब होना शुरू हो गया है। मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्क, फोन के थ्रू इंटरनेट, घर का वाईफाई चाहिए भी नहीं, फोन के वाईफाई से चल जाएगा, नहीं तो डोंगल ले लूंगा जियो का, जूम में मीटिंग कर लूंगा। अब उसको ये समझ में आना शुरू हो गया है, ऑफिस आने जाने का जो समय लगता था ये सब वो कैसे श्रिंक हो जाएगा ना, हाउ आई कैन यूटिलाइज मोर टाइम। मैं मीटिंग करने के लिए सीसीटी चला जाऊंगा, स्टारबक्स चला जाऊंगा। सो एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। मैंने कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले ही मैंने हेमंत जी से बात कर रहा था। आई जस्ट टोल्ड हेमंत जी, ऑफिस में काम करते हुए हम लोग 100% करते थे, आज के डेट में 100% नहीं कर रहे, 100 टाइम्स हो गया है। एफिशिएंसी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, एंगेजमेंट बढ़ गई है क्लाइंट के साथ। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर गोइंग टू इंपैक्ट ऑन द रियल टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब रियल एस्टेट एजेंट्स हूं, 10 साल से मैंने बिजनेस किया है रियल एस्टेट का, मतलब ही नहीं बनता छोड़ के चला जाऊं। वो 1000 क्लाइंट और कोई लेके और कोई उसको पिच करता रहेगा, आज के डेट में भी शायद पिच कर रहा होगा कोई, उसके घर की इंश्योरेंस होती होगी, फायर एंड बगलरी। अब उसमें आप डेटाबेस लेके बैठ के देखोगे कितने क्लाइंट आपके बिजनेसमैन थे, कितने जनों ने 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट खरीदे, कितने जन ने 50 और 80 लाख का खरीदा, और कितने लोगों ने 30 लाख का खरीदा। तो ऑटोमेटिकली 4 कैटेगरीज में आपको पता चल गया, 4 कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट है। तो चारों कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स के चारों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स होंगे। जो 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना है वो 5 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस टर्म लाइफ लेगा या 10 करोड़ का टर्म लाइफ लेगा, वो शायद 50-80 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेगा। जो 30 लाख का फ्लैट खरीदा है वो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेगा। अब समझ में आ रही है कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज है। दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन, एंड वी आर नॉट वर्किंग। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं अरे लॉकडाउन हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, जॉब मार्केट खत्म हो जाएगा, मेरे क्लाइंट तो भाग गए, रिडेम्पशन हो रही है, पैसे निकल जा रहे हैं, घर बिकेगा नहीं। बस कोई चीज खत्म नहीं होनी, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। आज ऑफिस में, एक ऑफिस में पकड़ लो 10 लोग थे, 2 आदमी मर गए कोरोना वायरस के चक्कर में, ऑफिस बंद हो जाएगा। 4 लोगों की नौकरी खुल गई वहां पे, तो 2 एक्सपर्ट बंदे थे जो गुजर गए। So obviously you have to think contrarian. हम लोग आज के डेट में कंट्रारियन सोच ही नहीं रहे, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिविज्म इतना ज्यादा है। हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे आरबीआई क्या देगा, वो क्या देगा, ये क्या देगा, अरे सब कोई सब कुछ देगा, फाइन। मैं अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजी क्या डेवलप कर रहा हूँ, क्या नया चीज ला रहा हूँ, क्या नया थॉट्स लेके आ रहा हूँ। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। नाउ ऑब्वियसली द रियल एस्टेट आउटलुक नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, जो HNI क्लाइंट्स है वो बोलेगा लंदन का फ्लैट सस्ते में मिल रहा है, इंडिया का फ्लैट क्यों लूं? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट सिर्फ इंडिया मार्केट में डाउन नहीं होगा, ग्लोबल मार्केट में डाउन होगा।
अब जो हाई नेटवर्क क्लाइंट्स है वो बोलेगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी बात, अगर रियल एस्टेट की प्राइस गिरेगा तो सेल भी बढ़ेगा ना। यस, रियल एस्टेट की प्राइस अगर गिरेगा तो सेल बढ़ेगा। सेल बढ़े या ना बढ़े उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पिछले साल 100 फ्लैट बिके थे और ये साल 50 फ्लैट बिके हैं तो 50 बिके हैं ना, आप उन 50 में कहां पे हो? दैट इज द थिंकिंग विच नीड्स टू कम अप। चीजें अपनी जगह रहेगी, वो चलता रहेगा। बिजनेस विल कीप ऑन हैपनिंग। मैं बिजनेस करने के लिए एक्स्ट्रा क्या चीजें ला रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अब रियल एस्टेट मार्केट में ऑफिस स्पेस डाउन रहेगा, ठीक है, आज डाउन रहेगा, 6 महीना बाद नहीं। अब 6 महीना तक तो मुझे फिक्स कॉस्ट निकालने हैं। और सीधी सी बात है, हर इंडस्ट्री, हर इकोनॉमी में उतार चढ़ाव रहेगा, बिकॉज कोरोना वायरस का अभी जो इंपैक्ट हुआ है, अभी कुछ भी इंपैक्ट नहीं हुआ है, नथिंग। आपको तो रियल इंपैक्ट तब आएगा जब लॉकडाउन ओपन होगा। लॉकडाउन ओपन होने के बाद 1 साल बाद जाके हमें पता चलेगा दैट इकोनॉमी अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा क्या नहीं। बिकॉज इसका जो रैशनल है वो एक अलग ही रैशनल है, जिसका जो अभी भी किसी के दिमाग में आया नहीं। एंड दैट रैशनल इज, जो सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज के डेट में डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग स्टिमुलस पैकेज एंड ऑल दोस थिंग्स, वो लोग, वो सरकार अगले साल शायद जाके ना रहे। एंड प्रॉब्लम ये होगा, उन्होंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन का हर्जाना हमें कैसे भरना है, वो तब डिसीजन होगा। ये मैं जब अगले सेशन में आऊंगा ऑन द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी, मैं उस सेशन में ये चीज को पूरे खुल के मैं आप लोगों को बता दूंगा द वेयर द लॉन्ग टर्म impacts will be of the current phase. So now coming back to the topic, to conclude, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको, if you are from the real estate agent agency network, you need to chip in, you need to strategize your business. मेरे जैसे जितने भी B2B प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, so that आपको हैंड होल्डिंग दे, प्रोडक्ट की नॉलेज दे। इन सारी चीजों के लिए यू हैव टू डू इट। इसके बिना मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू रन द बिजनेस पोस्ट द लॉकडाउन is over. Now